Yes, the first question is see here, this one is PT8 computer PT8 revision. So see here, first one is identify. So question is identify the correct option. Identify the correct option for Good afternoon, sir. visual basic. Identify the correct option for visual basic. Good afternoon, Manjit. So Yes. this is the question. The options of this question is like this. See here, option is high level language, high level programming language. B, high level programming language. Next one is based on event driven programming, based on event driven programming. Option number सर 3 ये पहला क्वेश्चन है. offers integrated development environment, offers integrated development environment, offers integrated development environment. And fourth one is D, all of these. सर ये पहला क्वेश्चन से डिवीजन हो रहा है. ओके सर. Yes, sir. Yes, so see here, the answer of the first question is, what is the question is, identify the correct option for Visual Basic. So Visual Basic is a high level programming language. तो ये जो है हमारा ये करेक्ट है, ठीक है ना. Visual Basic is a high level programming language, ये भी करेक्ट है. Visual Basic जो होता है इवेंट बेस्ड होता है, सारा हम लोग माउस पे बटन पे क्लिक करके ही कर रहे हैं. क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट, ऑन की प्रेस, ऑन की अप. सो विजुअल बेसिक हमारा इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग ही करेक्ट का है, ठीक है ना. इसमें भी इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. थर्ड वन इज विजुअल बेसिक जो है आईडी प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो ये भी करेक्ट है. दिस वन इज आल्सो करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इस स्टेटमेंट में भी मींस आईडी है, विजुअल बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आईडी प्रोवाइड करता है. इजीली वी कैन राइट द प्रोग्राम, लॉट ऑफ सपोर्ट इज देयर. मींस इफ यू राइट क्लिक, अगर हम लोग कीबोर्ड में जो कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा हेल्प आता है ऑटोमेटिकली. मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूं, दिखाया भी था, ठीक है ना. तो दैट वन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है. तो तीनों स्टेटमेंट जो है ऑप्शन ए दिया वो भी करेक्ट है, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ठीक है ना. तो तीनों का तीनों करेक्ट है, इसलिए फाइनली इसका आंसर जो होगा डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. All of these. All of these is the answer is D. Answer is D. All of these. ठीक है ना everyone? Yes. Clear? Now, Yes sir, cleared. second one. Next one is which of the following is not a property of text box control. Text box Sir, caption. text box control. So caption. Sir, Caption. Caption. Caption is the right answer of this question. Answer is caption. Caption is the right option. ठीक है ना, right option is caption. Now next one. Dash displays a list of various files of a project. Dash display a list of various files of a project. So the options will be like this. See here, A, properties window. Sir, B,
B. Solution Explorer. Solution Sir, Explorer. solution explorer is Sir, the correct answer. solution explorer is answer. Solution Explorer is Yes, sir. the right answer. Answer. Right answer is Solution Explorer only. Okay. Yes, sir. Toolbox is the next option like this. Toolbox. And D is menu bar. Menu bar. So the right answer of this question is Solution Explorer. प्रैक्टिकली इसको दिखाना पड़ेगा या No, sir. सॉल्यूशन No, एक्सप्लोरर जो डेली क्लास sir. कर रहे No, हैं तो पता ही होगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सॉल्यूशन एक्सप्लोरर व्हिच of the following which of the following best describes a property related to control. Which of the following best describe a property related to a control? So this is the question. Options of this question is a property that a property is a characteristics such as color and size of an object. So this one is the right answer. Property क्या आता? See here, which of the following best describes a property related to a control? Control क्या होता? Object. और every object मैं बताया हूँ क्या होता? Property होता है, event होता है और method होता है. सारे ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टी होता है, मेथड होता है, इवेंट होता है. सो प्रॉपर्टी में क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज. व्हाट इज द प्रॉपर्टी? कलर इज द प्रॉपर्टी, साइज इज द प्रॉपर्टी. सो यही राइट आंसर यही है. ठीक है ना? लॉट ऑफ अनदर ऑप्शंस विल बी आल्सो देयर लाइक प्रॉपर्टी इज एन एक्शन. सो राइट आंसर इज दिस वन इज this one only. Right answer. Right answer is this is only. Now the next one. Next one is the control that is used to display text or instructions So on the text form. box. On the form. The control that is used to display text or instructions on the form. Form पे अगर आपको The बटन text box तो control. see here options will be like this. Label control. B. Text box control. C. Button control. And D. Sir, label control. None of these. So Shivani का Sir, बल्ब answer will be label control. Answer will be label control. Right answer Yes, of this sir. question is label control. Right answer is label control. Now I am removing this one. Okay. Yes, sir. Now the Yes, next sir. one. Next one is Fill in the blank. an ID means integrated development environment. ID means integrated development environment. An ID provides a common environment. An ID provides common environments for designing, comma editing and removing errors.
रिमूविंग एरर्स मीन अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है प्रोग्राम में तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाता है काम करना और वो लाइन नंबर बताता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो द आंसर ऑफ the first fill in the blanks is this one, ID. ID provides a common environment for designing, editing and removing errors. Removing errors. Now the next one. Next one is a method. A method is an action. A method is an action that can be performed on an object. That can be performed on an object. Method is an action that can be performed on an object. Next one. Method. M-E. Method. The solution explorer. Method. The solution method, not M-E-T-H-O-D. method. The solution explorer window. Solution explorer window has the view code. Solution explorer window has the view code and view designer. Buttons. View designer buttons. See here, solution explorer window has the view code and view designer button. So see here everyone. File, new project. Default, suppose I am changing here. Fifth, Windows application. Fifth, click on OK. Now see here, this one is the Solution Explorer window. Everyone see, Solution Explorer window. This one. अब ये देखिए Solution Explorer window. Yes, just wait. So सिस्टम स्लो है, सिस्टम जो हमारा स्लो हो चुका है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। सी हियर द क्वेश्चन इज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, दिस विंडो जो है ना, ये विंडो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो है, हैज द व्यू कोड। सी हियर दिस वन इज द व्यू कोड, ये हमारा व्यू कोड है यहाँ पर, एंड हियर व्यू डिजाइनर, ठीक है, व्यू कोड, ये व्यू कोड है, मतलब हमारा कोड जब भी देखना होगा तो यहाँ से भी दिख सकते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाकर यहाँ पर व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोड आ जाएगा। यहाँ पे कोड अभी सिर्फ यही दिख रहा है क्योंकि फॉर्म है, सिर्फ फॉर्म ही। अगर कोई बटन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और बटन पे क्लिक किए, देखिए ये फॉर्म हमारा आ रहा है, फॉर्म के अंदर अब हमारा ये क्या होगा, ये मेथड भी आ गया, ठीक है ना। सो सी हियर अभी हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं व्यू कोड, ठीक है ना। यही क्वेश्चन में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारा व्यू कोड भी है, और यहाँ से हम डिजाइन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे व्यू कोड पे है और डिजाइन पे जाना चाहते हैं, व्यू डिजाइनर बटन से भी जा सकते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डैश प्रॉपर्टी, the max length property of text box, max length property of text box control can be used to control the max length property of text box control can be used to control the maximum number of characters that can be
that can be entered in the text box, text box. ठीक है ना। तो सी हियर द पॉइंट हियर इज, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स जो है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो है, हियर यहाँ पे बटन को रिमूव करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल पे क्लिक किए, प्रॉपर्टी पे, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ये है, अभी इसको रन करेंगे ना, सो जस्ट आई एम रन कर रहे हैं। नाउ सी हियर एवरीवन, ये हमारा आउटपुट विंडो, इसमें आप कुछ भी अभी एंटर कर सकते हैं और कितना भी कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे आप देख रहे हैं ना, बट दैट वी कैन, इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे? सी हियर, इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे? वी कैन हियर इन दिस टेक्स्ट बॉक्स वी हैव द प्रॉपर्टीज, हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो है उसका एक प्रॉपर्टी होता है मैक्स लेंथ। So see here everyone, just wait, somewhere it will be there, text box, max length here is there or not? So maximum आप 32,767 कैरेक्टर हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग एंटर कर सकते हैं, इतने कैरेक्टर को। बट आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट दिस, यहाँ से रिमूव करते हैं। सपोज मैंने 5 लिखा, ठीक है ना, 5 किया, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। नाउ सी हियर एवरीवन, अब ये देखिए हमारा विंडो हुआ, आउटपुट विंडो। अब इसमें मैंने जैसे 1 2 3 4 5, अब उसके बाद में कुछ भी लिखूंगा वो नहीं लेगा। ठीक है ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो भी इनपुट अब करेंगे नहीं एक्सेप्ट करेगा। ओनली 5 कैरेक्टर्स आर अलाउड, कोई भी 5 कैरेक्टर्स आप ले सकते हैं, ABCDE। अब उसके बाद ये नहीं लेगा। ठीक है ना, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ओनली 5 कैरेक्टर। सो दिस इज वी कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So the answer of this one is max length property of the text box. Now the next one is you can use the designer view. You can use the designer view. Last one is you can use the designer view. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now the next question is here, which is not a, this one is the next question, which of the following is not a property of form? फॉर्म का कौन प्रॉपर्टी नहीं है? फॉर्म एक हमारे पास है, विजुअल बेसिक में सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, सो फॉर्म इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, एवरी कंट्रोल इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। सो एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, एवरी ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज। सो one of the, this one is form. Here in the question is which of the following is not a property of the form? Form का कौन प्रॉपर्टी नहीं है? Question is which is not the property of form? Form का कौन प्रॉपर्टी नहीं है? Here question is which is not the property of form. अब नेम हमारा क्या है? नेम इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कंट्रोल। जो भी कंट्रोल रहता है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका हमारा प्रॉपर्टी जो है नेम होता ही होता है। ये नेम जो है होता ही होता है। किस लिए नेम यूज करते हैं? एनीवन टेल मी? टू प्रोवाइड द आईडी, यूनिक आईडी। तो नेम प्रॉपर्टी जो है ना, नेम प्रॉपर्टी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। हर एक आदमी का आधार कार्ड यूनिक होता है जैसे, और एवरी हर लोग का होना ही चाहिए, होता ही है। ठीक है ना, तो ऐसे ही प्रोग्राम में नेम हमारा प्रॉपर्टी होगा ही होगा सारे ऑब्जेक्ट का। तो ये जो ऑप्शन
नहीं होगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी, बैक कलर। सो फॉर्म का हमारा जो भी फॉर्म रहेगा तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने का ऑप्शन रहता ही है, नहीं रहेगा Yes, sir. तो हमारा फॉर्म अट्रैक्टिव नहीं होगा। सो बैक कलर इज आल्सो देयर। नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट। हमारा टेक्स्ट जब नहीं रहेगा तो हम लोग क्या होगा, इस फॉर्म कंट्रोल में टेक्स्ट भी एक प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम लोग हमारा जैसे क्या So होता है, title bar के name change कर सकते हैं. yes, in the title bar we can change the name, right? Name. See here, everyone. ये हमारा फॉर्म है, तो हमारा देखिए इस फॉर्म में नेम कंट्रोल होगा, ये टेक्स्ट कंट्रोल देखिए यहाँ पर है। अब ये टाइटल बार हमारा ये है, फॉर्म 1 है। यहाँ पर अगर CMIS लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर CMIS हो जाएगा। तो टेक्स्ट फॉर्म जो कंट्रोल है उसका प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, ठीक है ना। नेम भी है, see here somewhere name will be there, कहीं ना कहीं नेम होगा, ऊपर ही था. ऊपर ही था ना। Somewhere it will be there. Back color is also there. See here everyone. Back color is also there. Text is also there. And name. Name. See, name is here. So name is also there. So nowhere. See here. कहीं भी हमारा show करके कोई हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। शो आइकन है, शो आइकन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये जो आइकन दिख रहा है ना, इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइकन एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आइकन एक इमेज है, स्मॉल इमेज, ठीक है ना। स्मॉल इमेज होता है, इमेज हम डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो आइकन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। शो आइकन, शो आइकन मींस ये जो आइकन दिख रहा है उसको हमको दिखाना है कि नहीं, शो करना है कि हाइड करना है, इसके लिए शो आइकन प्रॉपर्टी है। ट्रू और फॉल्स, इनेबल डिसेबल वाला ये है। तो हमारे पास शो करके कोई प्रॉपर्टी नहीं है, शो प्रॉपर्टी कोई नहीं होता। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म? फॉर्म का प्रॉपर्टी कौन नहीं है? तो शो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So is the right answer of this question. Now, next set of questions, try to answer everyone. Now, first, above question, which function is used in Visual Basic to convert pure numeric string into number? Which function is used in VB? VB means Visual Basic to Sir, convert. VAL. So the answer Sir, is BL. Sir, VAL property. not property, function. Question here is see which function is used. Sir, So it is VAL not a function. VAL function is used in VB to convert pure numeric string into number. So like this, अगर इस तरह से हमारा स्ट्रिंग रहेगा like 1 2 3 4 5 डबल कोट में, so this one is what? स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग प्योर न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, टोटली इसमें नंबर था इस स्ट्रिंग के अंदर। so this string we can convert into the number, convert into this number। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं using this function, using this val function, ठीक है ना, val function। अब एग्जाम में ऑप्शन कैसे रह सकता है? ऑप्शन could be like VAL function, LAV function, ठीक है ना, AVL function और none of these, or convert
none of these are convert function. So this one is clear to everyone. Yes, sir. Now the next one is which property of an object is used to give its identification. Which property of an object is used to give its identification? अभी बताएं कुछ समय पहले. Name property. Name होगा. Name. Which property of an object is used to give its identification? So name property is used to name property of an object is used to give its identification. Next, dash property of a text box is used to control whether you can enter a value in the text box or not. Dash property of a text box is used to control whether you can enter a value in the text box or not. See here. Concentrate here first. Wait. Here, see here everyone. So one text box is here. Text box. This one is text box. So remove this one. This one is another text box. So two text box. Here, text box 1, text box 2. Here is a button. ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास लेबल है. लेबल 1, लेबल 2. Right. So label 1. Select the label 1, and here is write in the text. Somewhere text is there. Somewhere text will be there. Yes, so text. So enter first number. Enter first number. Second text box here. Enter second number. Now here button some button Sir, text will be here. So add. ठीक है. Now here text box 1 is there. So text box 1 is ID of the text box name will be somewhere here. So T1 देते हैं इसको. T1. This text box T2. Now this text box is T2. So two text box. Now here I want one more label, and the name of the label is text box is somewhere here. Result. Now see here. ये हमारा हो गया. यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. Here one text box is there. The identity of this text box is name. Where is the name? Somewhere name property will be there. Name. This one T3. Right? Now see here. So click on add button. Add button पे click किए. Remove this all code. Now click on this add button. Now here, so T3 dot text. T3 dot text is equal to T1 dot VL text. So here our main intention is different. ठीक है ना. हम लोग वो कॉल मीन्स कन्वर्ट करेंगे. बट वेट T2 dot text. Okay. So if you want to convert, so convert also. Well,
So no need to convert, just wait here. अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Here val t1 dot text, val t1 dot text, then val t2 dot text, t2 dot text, t2 dot text, right? So t2 is not good. Wait. So see here some problem is there. First text box is there. फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका मैंने नेम क्या दिया था, T1, राइट? सी हियर द सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, द नेम इज T2 and third text box the name is T3, right? Click on add. So T3 dot text is equal to T1 dot text, convert now T2. So it is not coming, just wait. So this T2, this one is a T2, change this one. Sometimes the problem will be there, so no issue here, change the name, T5 कर देते हैं इसको, ठीक है ना? इसको Yes, T5 sir. कर दिए, ठीक है? क्लिक ऑन ऐड. अब इसका हम क्या कर दिए, नेम T5 अभी आना चाहिए. Dot text. So it is not coming actually. So wait everyone, it will take some time but it will come. Do one thing, here in the form is there, solution explorer somewhere will be there. Create another form, add विंडोज फॉर्म. ये प्रॉब्लम क्या आ रहा मुझे पता है, लेकिन अभी आपको बताने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना? एक हमारा form2.db टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? सी दिस वन इज द टेक्स्ट बॉक्स. Yes. जो हमारा मेन पॉइंट था वो बताना था आपको, टाइम अब मेरे पास नहीं है, तो सी हियर. सो दिस वन इज द टेक्स्ट बॉक्स. अब ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ना, इसका हम लोग प्रॉपर्टीज होता है. सी हियर दिस फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स, सी हियर. अब टेक्स्ट बॉक्स 1 है, यहाँ पे इनेबल्ड प्रॉपर्टी है, इनेबल्ड प्रॉपर्टी होगा कहीं. Is it here? Anyone is able to see here? Enabled and disabled. Yes or no? True or false? True or false? Yes. इसका मतलब ये होता है कि सपोज वन लेबल हम लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लिए, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने दिया T1, ठीक है ना? टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम लोग सपोज T11 देते हैं, T11 किए, ठीक है ना? T11 करते एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसमें हम लोग T12 करते हैं. इस टेक्स्ट बॉक्स में T12 करते हैं, इसका आईडी T12, और एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे 3. ये एक्चुअली क्या है ना, मैं पॉइंट ये इसको इजीली इनेबल डिसेबल बता सकता हूँ, लेकिन आपके वो मतलब इंजेक्ट नहीं होगा दिमाग में आपके, तो इसीलिए मतलब यूज केस के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू आप लोग प्रॉपर्ली समझ में आएगा, अदरवाइज तो वो पॉइंट वाइज हो जाएगा. T13, सी हियर T13. अब मेरा ये है कि एक बटन रहेगा कहीं, सी हियर समवेयर बटन इज आल्सो देयर, ठीक है? अब बटन पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, T3 डॉट T13. हियर एवरीवन थिंग इज कमिंग. T13 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू val of T11 Dot text. dot
T11 dot text, right? T11 dot text plus val of T12 T2 12 dot text. text. Now see here everyone, right? अब देखिए इसको, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे T2 रन किए, there will be build error. What is that build error? Now earlier output is coming, just wait. When somewhere T2 is there, wait. Solution Explorer, project, right click, properties. Here change form 1 to form 2, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? And somewhere okay is there or not, I also don't know. Okay, so now I have changed this one. Now it should run. अभी हमारा form 2 run होना चाहिए. There will be, would you like to continue run the text? So this question I will discuss in the next class. Why compilation issue is there? So first I have to resolve. ये पहले हम resolve करेंगे, उसके बाद इसको next class में कराएंगे, ठीक है ना? Some compilation issue is there, compile Okay, नहीं हो sir. रहा, बार बार एक ही क्वेश्चन, मतलब आउटपुट जो होता है ना प्रीवियस ही आ रहा है हमारे विजुअल बेसिक क्यू बेसिक में एक स्टेटमेंट होता है सीएलएस स्टेटमेंट. सो सीएलएस स्टेटमेंट जैसे ही लिखते हैं, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आउटपुट हमारा पुराना वाला आउटपुट नहीं आएगा. लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स प्रीवियस आउटपुट आने लगता है. तो इसको हम चेक करके आपको अगर चेंज करके, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम होता है, कंपाइलेशन इशू है, कोई बड़ा इशू नहीं है, टाइम नहीं है अभी, तो अगले क्लास में इसको कराएंगे, ठीक है ना? बट सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड टू कंट्रोल वेदर यू कैन एंटर अ वैल्यू इन द टेक्स्ट बॉक्स और नॉट. Which property? So the answer is enabled property. Enabled property, ठीक है ना? Enabled property इसका आंसर होगा, right? Enabled property. This part अभी हम डिस्कस करेंगे ही. ये टेक्स्ट बॉक्स का सारा प्रॉपर्टी अभी क्लियर नहीं किए, सारा हम अभी बताएंगे ही, ठीक है ना? So this one is the text box. Next one is, next question is, try to understand everyone. The next question is, this one. What does me mean in Visual Basic? Me का मतलब क्या होता है? What does me means in the Visual Basic? Me means active form. Me means current object. Current object. Me का मतलब होता है current object. Me means current object. So see here everyone. Me means current object. So see here everyone. ये मैं पॉइंट जो बताना चाह रहा था आप लोगों को, ये रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं. कंपाइलेशन इशू था, इसको हम लोग रिमूव करते हैं और डायरेक्ट हम लोग फॉर्म 2 भी क्लोज कर दिए, फॉर्म 2 भी क्लोज कर दिए. ये फॉर्म 1 है, ये जो कुछ भी है उसको रिमूव करते हैं सारा सब कुछ. ठीक है, इनेबल्ड प्रॉपर्टी जो था वो क्या था, ये शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ. मैं सोच रहा था आपको प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू करने के लिए, नहीं हो रहा, अगले क्लास में कराएंगे. फिर भी सी है, जब इसको हम लोग रन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जब हम लोग इसे रन कर रहे हैं तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है. ये देखिए अभी सब कुछ मैं हटा दिया फिर भी ये आ रहा है. यहाँ पे समझना ये है, यहाँ पे मैंने कुछ एंटर किया, सपोज 22, यहाँ पे 33. अब जब बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगा, सपोज वो वैल्यू 55 आया,
ठीक है ना। इनेबल्ड अगर हम ट्रू रखेंगे ना, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में इनेबल्ड ट्रू रखेंगे तो जो कुछ भी लिखेंगे ना वो हमारा कोई चेंज भी कर सकता है, उसमें छेड़छाड़ कोई कर सकता है, उस वैल्यू को चेंज कर सकता है। लेकिन इसी टेक्स्ट बॉक्स में इनेबल्ड प्रॉपर्टी फॉल्स जब कर देंगे तो कोई इसको चेंज नहीं कर पाएगा, कोई इसे चेंज नहीं कर पाएगा। यही हमारा इनेबल डिसेबल का मतलब है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में हम गए हियर एवरीवन, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस टेक्स्ट बॉक्स के इनेबल्ड प्रॉपर्टी में गए, समवेयर इनेबल्ड इज देयर, जस्ट वेट इनेबल्ड। तो इस पॉइंट को हम लोग अगले क्लास में एग्जांपल के हेल्प से करेंगे। इसको फॉल्स जब कर देंगे, यस सी हियर, जब फॉल्स कर देंगे सो सी हियर, तो नाउ इट इज कमिंग, व्हाट इज हियर, वेट, अर्लियर आउटपुट इज कमिंग, form I have deleted, now it is coming. Solution Explorer. So see here everyone, form 2, now it is coming. Earlier it is not coming, but now it is coming. So see here, this one is the form 2. अब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालेंगे 11, यहाँ पे 22, बटन 1 पे क्लिक किए 33 आ रहा है ना, यस एवरीवन, कंसंट्रेट। यहाँ पर देखिए, अब ये हमारा चेंज भी कर सकते हैं, इसको 55 कर देंगे तो 55 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सी हियर, ये मैं बोल रहा था ना कुछ कंपाइलेशन इशू है जिसके कारण से हो रहा है। अब सी हियर, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे क्लिक किए, ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किए, सॉरी इनेबल प्रॉपर्टी, यस, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनेबल प्रॉपर्टी फॉल्स, जो इनेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देंगे। समवेयर इनेबल प्रॉपर्टी इज देयर, एनीवन टेल मी वेयर इट इज। इनेबल्ड प्रॉपर्टी ट्रू के जगह फॉल्स कर देंगे। नाउ सी हियर, इनेबल्ड प्रॉपर्टी मैंने फॉल्स कर दिया। अब इसको रन करेंगे, सो सी हियर, रन कर रहे हैं तो आउटपुट देखिए। Now see here, 22, 33, now click on button, now 55, now change this one, 55 we cannot change, why? Hide हो गया ये, sorry not it is hidden, ये read only हो गया। आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट का मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं, ये टर्म है कंप्यूटर का, रीड और राइट। रीड मतलब सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, इनेबल्ड प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। इनेबल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉल्स कर दी है, का इनेबल्ड प्रॉपर्टी फॉल्स कर दी है। ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये देखिए, ये फॉर्म 2 है, ऊपर देखिए यहाँ पर आइकन में फॉर्म 2 है, मैंने 2 फॉर्म बनाया था, ठीक है ना। तो समटाइम ये प्रॉब्लम होता है, इसको हम लोग ये कंपाइलेशन इशू बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई वही रॉकेट साइंस प्रॉब्लम में नहीं था, ये होता है कभी कभी, ठीक है ना। ऑटोमेटिक फिर ये रिजॉल्व हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टू F5. What is the shortcut to run a VB application? So, what is the shortcut to run a VB application? F5 is the right answer. F5 is the right answer. What is the shortcut to run the VB application? Is F5. That is also Yes, easy. sir. Wait, see here. The time is over. Yes, wait, last. Now see this one. Every form as well as control has its own set of properties, methods, and every form as well as control. Answer is form, properties, Third event. event is the right answer. Properties, methods, and events. So, bye everyone. Your class is over. Thank you, sir.